What if I tell you that without giving RBI assistant examination or RBI grade B examination, you can still work with the Reserve Bank of India? You might be wondering, you should be. Because today I'm going to tell you about an initiative of the Reserve Bank of India through which you can work with the Reserve Bank of India without giving any examination. Friends, I'm talking about the summer placement initiative of the Reserve Bank of India. So let's discuss this in detail. Every aspect we would be discussing in this particular session, guys. So welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's discuss the summer placement initiative of the Reserve Bank of India. So यहाँ पे what is this initiative? For that, what you need to do, basically you need to type RBI Summer Internship 2025 on Google, and after that you can see the link. You can click on the link and directly you will be visited the RBI's website, right? So here you can see all the details with respect to the summer placement, right? So I told you that without giving any examination, you can have an opportunity to work with the Reserve Bank of India. So what is this opportunity? How you can apply? ठीक है, किस तरीके से कितना ड्यूरेशन होता है? Will you get any stipend or not in this particular placement period? So these all details I would be discussing in this particular video, and those who want to work with Reserve Bank of India without giving this examination, guys, this is one of the best opportunity. तो चलिए डिस्कस करते हैं about the summer placement. So first of all, guys, you can see this is in the on the RBI's website. तो आपको RBI website visit करनी पड़ेगी, and I told you you can type on Google basically summer placement by RBI 2025. You can get the link. So guys, summer placement afford an opportunity to domestic or and foreign students to expose themselves to an actual central banking environment and undertake projects on the issues relevant to the central bank with the guidance from experts professionals in the central bank. तो यहाँ पे through the summer placement RBI is providing an opportunity for the domestic as well as foreign students. ठीक है, जो यहाँ पे Indian students हैं, जो यहाँ पे foreign students हैं, they can work with the Reserve Bank of India in any particular project. ठीक, किसी आप एक particular project में यहाँ पे Reserve Bank of India के साथ यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, guys. क्या प्रोसीजर है उसका, I would tell you here. So guys, here you can see, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट द डोमेस्टिक स्टूडेंट. ठीक है, डोमेस्टिक स्टूडेंट किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड कीप इन माइंड, ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट? So here you can see the Reserve Bank of India invites application from eligible candidates for summer placement in various offices of the bank. तो यहाँ पे basically eligible candidates को यहाँ पे invite किया जा रहा है कि they can have the advantage of summer placement in various offices of the Reserve Bank of India. How to apply? What are the eligibility? This is what I am going to tell you in this particular video. ठीक है? So first of all, guys, who can apply? ठीक है, who can apply? So if you are a student, you can apply, but there is just some eligibility criteria. For example, students pursuing पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. तो ऐसे स्टूडेंट जो बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज परसू कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड इज इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्सेज इन मैनेजमेंट. अगर यहाँ पे इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्सेज आप कर रहे हैं बेसिकली इन मैनेजमेंट और स्टैटिस्टिक्स, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, और 3 year full-time professional bachelor degree in law from a reputed institutions, colleges located in India. So you are eligible, provided you who are currently in the penultimate year of the course can only apply for the summer placement. तो अगर आप इन डिग्रीज को परसू कर रहे हैं और आप अपने लास्ट फाइनल ईयर में है, सो यू कैन अप्लाई फॉर द समर प्लेसमेंट इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट? दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड. तो अगर यहाँ पे आप बेसिकली लास्ट ईयर में है, यू आर परसुइंग ऑल दीज डिग्रीज दैट वी आर बेसिकली डिस्कसिंग हियर, जो हमने जस्ट डिस्कस किया यहाँ पे, उनमें से कोई भी एक डिग्री इफ यू आर परसुइंग देन यू कैन अप्लाई फॉर द समर प्लेसमेंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हाउ टू अप्लाई? आपको अप्लाई कैसे करना गाइस? सो एलिजिबल स्टूडेंट्स शुड अप्लाई फॉर समर प्लेसमेंट थ्रू द ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म. सो देयर इज एन ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है आपको. यू कैन अप्लाई थ्रू दैट ओनली फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 15 दिसंबर. तो अभी आपके पास काफी टाइम है, 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक बेसिकली ये पूरा जो एप्लीकेशन पीरियड है दैट वुड बी ओपन. सो यू कैन अप्लाई इन दिस पीरियड ओनली ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर इंटर्नशिप स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो जो इंटर्नशिप होगी दैट वुड बी स्टार्टिंग इन द अप्रैल नेक्स्ट ईयर. ठीक है, तो जो एप्लीकेशन है वो 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक के बीच में यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे. आपकी जो इंटर्नशिप है दैट वुड बी स्टार्टिंग इन द अप्रैल नेक्स्ट ईयर, राइट? Then further the candidate shall ensure that they correctly mention the state in which their college institute is located. यहाँ पे आपका जहां भी कॉलेज है, जहां भी इंस्टीट्यूट है, वहां पे आपको एकदम सही एग्जैक्ट डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी. यहाँ पे देयर आर कंट्रोल ऑफिसेस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पूरे स्टेट वाइज यहाँ पे मेंशन यू कैन सी फॉर महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली. ये बेसिकली यहाँ पर
मुंबई में इसका ऑफिस है, ठीक है। देन फर्दर गुजरात में देख सकते हैं, कर्नाटका। सो फॉर ऑल स्टेट्स यहाँ पे कंट्रोल ऑफिसेस आर मेंशन्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी आपके फर्दर आगे काम आएगा। देन बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे प्लीज नोट दैट ऑल द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर ऑफ समर प्लेसमेंट एक्सेट्रा विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल एंड नो मॉडिफिकेशंस विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, जो भी आप अपनी डिटेल्स देंगे, नेम हो गया आपका, ठीक है, आपका बेसिकली ईमेल आईडी हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, ये सारी चीजें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे अलर्ट होकर यहाँ पे अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। एंड देन फर्दर कैंडिडेट्स आर हेंस रिक्वेस्टेड टू फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद द अटमोस्ट केयर एज नो करस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग चेंज ऑफ डिटेल्स विल बी एंटरटेन, ठीक है। बहुत ही केयरफुल तरीके से भरिएगा, क्योंकि इसमें बाद में यू विल नॉट बी एबल टू ऑल्टर द थिंग्स, यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई द थिंग्स, राइट। फर्दर बात करते हैं, आरबीआई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज अराइजिंग आउट ऑफ फर्निशिंग ऑफ इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट डिटेल्स इन द एप्लीकेशन और omission to provide the required details in the application form, right? An online application which is incomplete in any respect, such as without photograph, signature and college authorization letter, bona fide certificate uploaded in the online application form will not be considered. तो यहाँ पे अगर कोई चीज ऐसी है जो इनकम्प्लीट है, ठीक है, अगर आपने कोई चीज अधूरी यहाँ पे दी हुई है, देन इन दैट केस वो एप्लीकेशन जो है आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। मूविंग अहेड, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड in their own interest to apply online application much before the closing date and not wait till the last date to avoid the possibility of disconnection, inability, ठीक है, और failure। तो यहाँ पे लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। आई टोल्ड यू लास्ट डेट इज 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर तक का वेट मत करिएगा गाइस, बल्कि यहाँ पे एडवांस में इफ यू वांट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी गाइस, यू शुड फिल द फॉर्म एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। जितना जल्दी आप यहाँ पे फिल कर देंगे उतना अच्छा आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। देन फर्दर बात करते हैं यहाँ पे, please note that the above procedure is the only valid procedure for applying. No other mode of application or incomplete steps would be accepted and such applications would be rejected, ठीक है। तो यहाँ पे कोई और तरीका नहीं है, जो तरीका यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जनरल रूल्स की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली one control offices and will not be considered for the summer placement at the center as per their college institutes location। तो यहाँ पर बेसिकली एक ही कंट्रोल ऑफिस के रिगार्डिंग यहाँ पे आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉर एग्जांपल कैंडिडेट स्टडिंग इन कॉलेज इन इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड इन महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली कैन अप्लाई फॉर मुंबई सेंटर ओनली। तो आप यहाँ पे अलग अलग सेंटर्स के लिए नहीं कर सकते, अलग अलग कंट्रोल ऑफिसर्स के लिए नहीं कर सकते। जहां पर आपका कॉलेज सिचुएटेड है आप वहीं के कंट्रोल ऑफिस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स नीड टू सबमिट सेंड at any address application printout or any certificates or copies thereof at the time of online application। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे उस टाइम पर आपको कोई भी यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह कोई भी जीरोक्स या कोई भी किसी भी तरीके की चीजें आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन में आपने इंफॉर्मेशन दी होगी उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बेसिकली वो जो एप्लीकेशन है दैट विल बी कंसिडर्ड। एंड इफ एट एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फॉल्स, इनकरेक्ट और इफ अकॉर्डिंग टू आरबीआई द कैंडिडेट डज नॉट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हिज और हर कैंडिडेचर इज लाइबल टू बी कैंसिल, ठीक है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि कोई भी किसी भी स्टेज में अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो गलत है या आरबीआई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियम फॉल नहीं होती, तो इन दैट केस आपका जो बेसिकली कैंडिडेचर है वो बेसिकली आपका एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, राइट। देन फर्दर बात करते हैं, all educational qualifications should have been obtained from recognized university institutions in India. Candidates should indicate the percentage obtained in graduation calculated to the nearest two decimals in the online application। तो जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई जो बेसिकली परसेंटेज है ग्रेजुएशन में, इफ दे आर गिवन एज अ CGPA और SGPA, तो बेसिकली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज के टर्म्स में। देन आगे बात करते हैं गाइस, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट दैट दे शुड नॉट फर्निश एनी पर्टिकुलर्स दैट आर फॉल्स, टेम्पर्ड विथ और फैब्रिकेटेड एंड शुड नॉट सप्रेस एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन व्हाइल सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। जनरल गाइडलाइंस है बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज यू विल नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू मॉडिफाई द थिंग्स, टू ऑल्टर द थिंग्स। सो गाइस जब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, बी अलर्ट, बी इंश्योर कि वॉट एवर यू आर बेसिकली फिलिंग द डिटेल्स दैट आर कंप्लीटली करेक्ट, ठीक है। अगर गलती हुई तो फिर आपके जो एप्लीकेशन दैट वुड बी रिजेक्टेड। मूविंग अहेड, यहाँ पे आरबीआई शैल नॉट एंटरटेन रिक्वेस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट सीकिंग एडवाइस अबाउट देयर एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डाउटफुल है, आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आरबीआई जो ऐसी कोई एप्लीकेशन यहाँ पे जो है कंसिडर नहीं करेगी, ऐसी कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे कंसिडर नहीं करेगी। बात करें यहाँ पे सिलेक्शन की गाइज, तो बैंक विल सेलेक्ट अ मैक्सिमम ऑफ 125 स्टूडेंट्स फॉर समर प्लेसमेंट एवरी ईयर। तो हर साल यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की बात करें, सो 125 स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेसिकली क्या करती है,
125 स्टूडेंट्स को यहाँ पे समर प्लेसमेंट के लिए बेसिकली शॉर्टलिस्ट करती है, सेलेक्ट करती है. देन इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इंटरव्यू फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड एट द ऑफिसेज एज इंडिकेटेड. तो यहाँ पे बेसिकली इंटरव्यू होगा. अभी आप अगर 15 दिसंबर तक फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर्म कंसिडर हो गया, शॉर्टलिस्ट हो गया, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विच विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ बेसिकली यहाँ पे जनवरी और फरवरी. ठीक है, तो 2025 के लिए जनवरी एंड फरवरी में आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि अप्रैल से बेसिकली यहाँ पे आपका जो समर प्लेसमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा. देन शॉर्ट लिस्टेड आउट स्टेशन कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू बियर द ट्रेवल कॉस्ट ऑफ जर्नी टू द ऑफिसेस ऑफ आरबीआई एंड बैक. फॉर दिस पर्पस नेम्स ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च. तो इंटरव्यू होंगे, उसके बाद जो लोग यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे बेसिकली उन्हें फरवरी और मार्च के मंथ में बेसिकली कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप बेसिकली यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और आपका जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इंटर्नशिप टाइप की है दैट विल बी स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल, राइट. Further, selected outstation candidates will be reimbursed AC second tier return fare by rail from the place of his her institute to the place of summer placement for undertaking the project. तो यहाँ पे guys एक चीज और इंपॉर्टेंट है, what you have to keep in mind कि यहाँ पे बेसिकली जहां भी जो भी आपके कंट्रोल ऑफिसेस, जिस भी कंट्रोल ऑफिसेस के अंडर में बेसिकली आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन चल रही है, ठीक है, आप वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, वो जिस भी पर्टिकुलर कंट्रोल ऑफिसेस के अंडर में आता होगा, आई मीन किसी पर्टिकुलर स्टेट में आ रहा है, ठीक है, हर स्टेट का यहाँ पे कंट्रोल ऑफिसेस बनाए गए हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए उसी कंट्रोल ऑफिसेस में यहाँ पे बुलाया जाएगा. देन फर्दर बात करें डिक्लेरेशन ऑफ सीक्रेसी की. सो समर ट्रेनीज आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ डिक्लेरेशन ऑफ सीक्रेसी टू द बैंक बिफोर रिपोर्टिंग फॉर द इंटर्नशिप. तो यहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन ऑफ सीक्रेसी कि जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे आप उसको बेसिकली डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है. जो भी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे, जो भी चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे बैंक की फंक्शनिंग में, क्योंकि यहाँ पे आप क्रूशियल प्रोजेक्ट पे काम करने वाले, ठीक है. सो यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू दैट, एंड फॉर दैट यू नीड टू फर्निश द डिक्लेरेशन ऑफ सीक्रेसी बिफोर स्टार्टिंग द इंटर्नशिप. देन बात करें ड्यूरेशन क्या रहेगी, तो नॉर्मली द पीरियड ऑफ प्लेसमेंट विल बी फॉर द मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई. तो ये मैक्सिमम 3 मंथ्स का होता है, अप्रैल से स्टार्ट होकर जुलाई तक, ठीक है. तो अप्रैल के मिड में स्टार्ट हो सकता है, जुलाई के मिड में बेसिकली खत्म हो सकता है. सो 3 मंथ्स का मैक्सिमम यहाँ पे रहता है, बट यहाँ पे आरबीआई चाहे तो आरबीआई में रिड्यूस और एक्सटेंड दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन, राइट. दिस इज नंबर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. प्लेस की बात करें, सो समर ट्रेनीज विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट एट द सेंटर करस्पॉन्डिंग टू द स्टेट ऑफ देयर इंस्टीट्यूट एज पर द टेबल गिवन अबव, ठीक है. तो यहाँ पे प्लेस के लिए भी रिगार्डिंग वहां पर टेबल ऊपर दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्लेस ऑफ समर ट्रेनिंग है वो रहने वाली है. देन बात करें फैसिलिटीज क्या रहेंगी यहाँ पे, तो समर ट्रेनीज आर एलिजिबल टू रिसीव अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 20,000 पर मंथ, ठीक है. तो यहाँ पे 20,000 पर मंथ की आपको स्टाइपेंड पे किया जाएगा बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बट यहाँ पर रहने का जो अरेंजमेंट है एकोमोडेशन का, वो आपको अरेंजमेंट्स खुद ही करने पड़ेंगे, ठीक है जी. एकोमोडेशन के अरेंजमेंट यू नीड टू डू ऑन योर ओन. यहाँ पे आरबीआई विल पे यू अ स्टाइपेंड ऑफ 20,000 पर मंथ. तो अगर आप यहाँ पे 3 मंथ्स काम करेंगे, सो यू वुड बी गेटिंग अराउंड 60,000 ओवरऑल अमाउंट, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू द डोमेस्टिक कैंडिडेट्स, ठीक है. बात करें यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, सो ऑल्सो दे कैन अप्लाई, दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, दिस इनिशिएटिव. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स परसुइंग हायर डिग्रीज स्टडीज इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग, मैनेजमेंट, लॉ एंड रिलेटेड फील्ड्स इन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स अब्रॉड आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है. तो यहाँ पे इनमें से कोई भी डिग्री बेसिकली परसू कर रहा है अगर कोई स्टूडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो बेसिकली ही कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर समर प्लेसमेंट. फर्दर हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है इस प्रिस्क्राइब फॉर्म में फिल करना है और मेल करना है यहाँ पे, ठीक है, दिस पर्टिकुलर एड्रेस पे. देन फर्दर यहाँ पे व्हेन टू अप्लाई, एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्डेड टू द अबव एड्रेस बिटवीन 1 नवंबर टू 31 दिसंबर. तो यहाँ पे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली टाइमलाइंस अलग हैं, 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक के लिए यहाँ पे टाइमलाइंस हैं, राइट. ड्यूरेशन की बात करें तो इनका ड्यूरेशन स्टार्ट होता है बेसिकली जुलाई से अक्टूबर का. तो जब यहाँ पे डोमेस्टिक जो स्टूडेंट्स हैं, जब उनकी यहाँ पे इंटर्नशिप खत्म होगी, उसके बाद यहाँ पे फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, दैट विल बी फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर. एप्लीकेशन विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर एप्लीकेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर सिलेक्शन बिफोर 15 फरवरी एवरी ईयर अलॉन्ग विद अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो यहाँ पे 15 फरवरी के पहले उन्हें यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रीजन बीइंग कि यहाँ पे दे आर द फॉरेन स्टूडेंट्स, राइट. तो वहाँ पे बेसिकली अगर वो यहाँ पे इंडिया में आकर स्टार्ट करना चाह रहे, दे नीड टू अरेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक. उन्हें वीजा भी करना पड़ेगा, उन्हें टिकट्स भी बुक करनी पड़ेगी, उन्हें एकोमोडेशन का भी देखना पड़ेगा. सो देयर शुड बी अ फिक्स्ड डेडलाइन वेयर आरबीआई कैन basically intimate the foreign students. Then बात करें place of summer training, so selected trainees will be required to undertake a project only at
द सेंट्रल ऑफिस डिपार्टमेंट्स टू द बैंक लोकेटेड इन मुंबई। तो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली प्लेस क्या होगा, यहाँ पे मुंबई होगा। डिक्लेरेशन ऑफ सीक्रेसी उन्हें भी साइन करना पड़ेगा, उन्हें भी फर्निश करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो दे वुड बी गेटिंग 20,000 पर मंथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे डोमेस्टिक स्टूडेंट्स और फॉरेन स्टूडेंट्स के बीच में किसी तरीके का यहाँ पे बायसनेस है। दे वुड ऑल्सो बी गेटिंग 20,000 पर मंथ। ठीक है, और एकोमोडेशन का जो अरेंजमेंट है अगेन उन्हें भी बेसिकली खुद से ही करना पड़ेगा। सो दीज ऑल आर द डिटेल्स गाइस। और यहाँ पे इफ यू आर अ डोमेस्टिक स्टूडेंट गाइस, तो यहाँ पे यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर बेसिकली पोजीशन। यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई में यू कैन सी एलिजिबल स्टूडेंट शुड अप्लाई फॉर समर प्लेसमेंट थ्रू दिस पर्टिकुलर लिंक। तो यू हैव टू क्लिक इट। आफ्टर क्लिकिंग दैट यू कैन सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर आरबीआई समर इंटर्नशिप स्कीम। तो यहाँ से पूरा एप्लीकेशन आपको बेसिकली मिल जाएगा। ठीक है, आपको सारी चीजें अपने डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से आपको फिल करनी है, बहुत आराम से फोकस्ड होकर फिल करिएगा, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। यू हैव सफिशिएंट टाइम, 15 दिसंबर तक का टाइम है आपके पास, बट 15 दिसंबर का ही वेट मत करिएगा। इफ यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव गाइस, यू शुड फिल द फॉर्म अच्छे तरीके से, केयरफुल तरीके से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दीजिए, और फिर इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पर your application should be shortlisted and then you will be called for the interview and everything. If everything goes fine, then in that case you will get the opportunity to work with the Reserve Bank of India फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ फिल करके सबमिट कर देना है। गॉट इट। सो दिस इज द गाइज अपॉर्चुनिटी दोज हु वांट टू वर्क विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे आरबीआई के साथ काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आरबीआई ने दिया है ताकि आपको बेसिकली वहाँ पे किस तरीके से काम होता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का आप पार्ट बनेंगे, यू विल लर्न अ लॉट। तो इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन ऑल्सो और आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन ऑल्सो, सो गाइज यहाँ पे भी आप इसका एडवांटेज लीजिए। ठीक है, इसका एडवांटेज लेंगे, यू विल गेट टू नो द इकोसिस्टम, द एनवायरमेंट दैट आरबीआई इज प्रोवाइडिंग। तो उसके बाद फिर आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आई नो वेरी वेल कि वहाँ पे बहुत अच्छा इकोसिस्टम होता है, बहुत अच्छा एनवायरमेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है टू द ऑफिसर्स। सो when you will become the part of this initiative, after that you will be more confident कि now you have to become RBI grade B officer. So this is all with respect to the summer placement. So I would say कि definitely you should avail it. यहाँ पे कुछ आपका नुकसान नहीं है, you will learn a lot. और when you will mention this thing in your CV, ठीक है, जब भी आप कहीं CV में अपनी चीज mention करेंगे, so that will give you an extra edge over other aspirants. ठीक है, so thank you very much for watching this particular session. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye and happy learning, guys.